recovery of possession of immovable property under Specific Relief Act 1963. Okay. So as we know, SRA जो है Specific Relief Act that provides the remedy with respect to the certain civil rights. Okay. It provides the remedies like injunction, cancellation, declaration and so on. बहुत सारी remedies SRA provide करता है. So there is one remedy in SRA which provides that if a person has the immovable property and he is entitled to the possession of that immovable property, then he can file suit under section 5 and section 6 of SRA. So today I will try to tell what is the difference between the two sections and how you can file in such suit. In such sections, the suit to recover the possession of immovable property. So first I'll talk about section 5. Section 5 says that if any person is entitled to the possession of any immovable property, then he can file suit in CPC. So if there is a person, he is entitled to this plot, and it has been, let's say, possessed by B, then he can file suit against B in CPC. अगर वो CPC के अंदर सूट फाइल ही कर सकता है तो why is it given in section 5? So it is section 5 is merely a declaratory provision that if any person is entitled to the possession of any immovable property, वो इसमें सेक्शन 5 में ही कैन फाइल द सूट. एक सेक्शन 5 में जो नोट करने वाली बात है वो ये है, द वर्ड्स दैट आर रिटर्न इन सेक्शन 5 इज एंटाइटल्ड टू पोजेशन दिस. तो दे आर नॉट सेइंग दैट ओनली इफ़ यू आर एंटाइटल्ड टू एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी. अगर सिर्फ एंटाइटल्ड लिखा होता देन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल यू कैन फाइल द सूट. यानी अगर आपके पास टाइटल है अपनी प्रॉपर्टी, कोई डॉक्यूमेंट है कि हाँ मैंने ये प्रॉपर्टी इस टाइम ख़रीदी थी या मुझे ये विल में मिली थी या जो भी रीज़न है, अगर सिर्फ एंटाइटल्ड लिखा होता तो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल द प्रॉपर्टी could be recovered. But since it has been written entitled to possession, that means for both the cases, that is if the person has the title then also he can file the suit, and if the person has the possession only then also he can file the suit. For example, if I am A and I am living on a rent in this building, then I am not entitled to the ownership. I do not have the ownership title to the suit, but I am entitled to the possession, so I can file the suit in this area. Now it is also important to understand title can be of two types. First, that you have direct document in your hand, either it can be a either it can be a sale deed or it can be a gift deed or any other kind of instrument. But एक दूसरे टाइप का टाइटल होता है which is titled by way of adverse possession. adverse possession क्या होता है? ये आर्टिकल 20 सेक्शन आई गेस 25, मुझे देखना होगा 5 है कि 7 है. 7 होगा या तो जस्ट वेट अ मिनट.
सेक्शन 27 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट ये बोलता है अगर किसी पर्सन ने विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो कि लिमिटेशन एक्ट में प्रोवाइड करवा रखी है टाइम पीरियड उसके विद इन अगर रेमेडी क्लेम नहीं की है देन ही विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू द रेमेडी, ही कैन नॉट फाइल द सूट। जिसे लिमिटेशन एक्ट नहीं पता है तो टू टेल यू इन ब्रीफ क्या होता है, इंडियन लिमिटेशन एक्ट में टाइम पीरियड प्रोवाइड करवा रखा है कि अगर कोई भी सूट है वो कितने टाइम के अंदर वो रेमेडी क्लेम की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई एम अ शॉपकीपर एंड अ पर्सन बी buys a cold drink from my shop and if the person does not pay the price then I can file the suit within how many years, है ना। तो ये लिमिटेशन एक्ट में प्रोवाइड करवा रखा है। ऐसे फॉर एवरी टाइप ऑफ सूट लिमिटेशन एक्ट प्रोवाइड्स द नंबर ऑफ ईयर्स विद इन विच द रेमेडी कैन बी क्लेम्ड। तो सेक्शन 27 बोलता है कि इफ़ विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन द रेमेडी इज़ नॉट क्लेम्ड देन द पर्सन विल लूजेज इज राइट टू क्लेम सच रेमेडी। यानी कि अगर लिमिटेशन पीरियड में प्रोवाइड करवा रखा है कि आई कैन क्लेम द amount from the buyer within the period of 3 years and if I do not file the suit within the period of 3 years then I will lose the remedy, the title to such, I will not be entitled to file the suit again. Now एक adverse possession क्या होता है, if this is a property and I am the owner, let's say I am A and I am the owner, so if अगर इस property पे कोई कब्ज़ा कर लेता है तो आई एम एंटाइटल्ड टू फाइल द सूट अगेंस्ट हिम विद इन द पीरियड ऑफ 12 ईयर्स। ठीक है, अगर मैंने विद इन द पीरियड ऑफ 12 ईयर्स सूट नहीं फाइल किया है देन बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 27 आई विल लूज द राइट। नाउ द पर्सन जिसने कब्जा किया है, लेट्स से ही इज़ बी, ही विल बिकम द ओनर। सो ये है एडवर्स पोजेशन। But there are certain conditions that must be fulfilled to claim the adverse possession. For example, adverse possession जैसे अगर B है, B को अगर ओनर बनना है by way of adverse possession तो उसे ये प्रूफ करना पड़ेगा that he has been in possession for the period of 12 years. 12 years का possession है। Second, he will have to prove that B has been in possession with my acquiescence, कि ए ने जो ओनर है उसे पता है कि आई एम लिविंग ऑन दिस प्रॉपर्टी एंड ए डेलिबरेटली इज़ नॉट टेकिंग द एक्शन एंड तो एंड थर्ड इज़ एडवर्स होना चाहिए पोजेशन। एडवर्स यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि दैट ए हैज़ अलाउड बी कि हाँ चल तू मेरी प्रॉपर्टी पर रह ले ग्रेचुअसली, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बी ए का सर्वेंट होता तो ए बोल देता कि चल तू मेरे घर में काम करता है तू इस घर में रह ले। अगर ऐसे होता ये ग्रेचुअस पोजेशन हो जाता तो इसमें सेक्शन सॉरी ये वाला सूट एडवर्स पोजेशन का सूट फाइल नहीं हो सकता है। बट अगर ये एडवर्स है यानी कि ए इज़ डिनाइंग द टाइटल एंड स्टिल बी इज़ इन पोजेशन तो तब वो सूट फाइल कर सकता है। अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ, ये एक प्लॉट है जिसका ऑनर ए था और इस पे बी ने कब्ज़ा कर लिया है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पोजेशन ले लिया है। नाउ कब ये ऑनर व्हेन बी कब ऑनर बनेगा, अगर बी इस प्रॉपर्टी में 12 साल से रह रहा है। सेकेंडली ए को पता है कि बी 12 साल से रह रहा है, ए टाइटल को डिनाई कर रहा है, स्टिल बी इन पोजेशन। थर्डली C A has not taken action for 12 years, so
तो ये एडवर्स पोजेशन हो जाएगा। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि जो सूट होता है दिस, तो हम सेक्शन 5 पे वापस आते हैं। तो एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू पोजेशन, तो पोजेशन मैंने बताया कि अ पर्सन कैन बी इन पोजेशन फॉर 2 रीजन्स, ठीक है, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल और ऑन द बेसिस ऑफ पोजेशन। अगर वो पोजेशन में था, उसको किसी ने रिमूव कर दिया है, देन ही कैन फाइल द सूट। एंड इफ़ एनी पर्सन इज़ एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी, और आइदर जब एडवर्स पोजेशन होता है तो उसे टाइटल ये वाली प्रॉपर्टी मानी जाती है कि उसके पास टाइटल आ गया है। ये इस सूट को आर्टिकल 65 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट के साथ फाइल किया जाता है, और दिस सूट को आर्टिकल 64 के साथ फाइल किया जाता है। तो दिस इज़ द थिंग। अगर हम सेक्शन 6 पे आएँ, सेक्शन 6 बात करता है एक स्पीडी रेमेडी की। That says if this is a property, this is a plot, and any person is living here, irrespective of the fact कि वो ओनर है या उसके पास पोजेशन है, वो ट्रेसपासर है, कोई भी पर्सन हो, अगर ए जो कि रियल ओनर है, वो अगर इसको फोर्सफुली रिमूव करता है प्रॉपर्टी से, फोर्सफुली रिमूव करता है प्रॉपर्टी से, तो this person, let's say he is B, can file suit in section 6 and claim the possession. In section 6, on the basis of title, suit cannot be filed even though A has the title deed in his hand, but he cannot forcefully remove B. पर्पज़ यही है सेक्शन 6 का, nobody takes law in their own hand, कि कोई लॉ को अपने हाथ में ना ले। इसमें कुछ कंडीशंस है सेक्शन 6 की, जैसे कि ये सूट कैन ओनली बी फाइल्ड विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अगर 6 मंथ से ज़्यादा बीत गए हैं, उसने सूट नहीं फाइल किया है फॉर पोजेशन, देन ही विल गो टू अंडर सेक्शन 5, उसमें तो रेमेडी है ही। तो ये था सेक्शन 5 और सेक्शन 6।